A very good morning to everyone present here. I, Garima Jain, Assistant Professor at DME Media School, welcome you to the BG Varghese Lecture Series organized by Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, a premier college affiliated to Guru Govind Singh Indraprastha University and approved by Bar Council of India. Let's also acknowledge our recent accomplishment of obtaining the prestigious NAC A+ accreditation. BG Varghese Lecture Series are organized in the memory of Mr. BG Varghese, a senior journalist and the winner of the prestigious Ramon Magsaysay Award for the outstanding contribution to journalism. The significance of great celebrations and ceremonies is amplified by the divine blessings of the Almighty. Before proceeding with this session, it's imperative that we seek the grace of the divine and offer our prayers for the prosperity and success of our endeavors. I extend a warm invitation to all dignitaries and guests to join us for the ceremonial lighting of the lamp. Arogyam dhanasampadah Shatrubudhi vinashaya Deepajyotir namostute Deepajyotir namostute Deepajyotir parabrahma Deepajyotir janardanah Deepajyotir parabrahma. I'm honored to extend a warm welcome to Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Parul Mehra, Head of DME Media School, and our distinguished guest for today's lecture is Mr. Shishir Sinha, Associate Editor, The Hindu Business Line. Let's greet all our esteemed dignitaries with a huge round of applause. I would request Professor Dr. Amrish Saxena and Dr. Parul Mehra to kindly felicitate our guest with a token of gratitude. Now I would like to extend an invitation to Dr. Parul Mehra, the head of DME Media School, to deliver her welcome address and extend a warm welcome to our guest. Ma'am. Honorable guest, Mr. Shishir Sinha, Dean DME Media School, Professor Amrish Saxena, my dear colleagues and my dearest students, very good morning to all of you. Well, it gives me immense pleasure that DME Media School is taking the legacy forward of this series, and I feel truly elated to extend my warm welcome to our guest, Mr. Shishir Sinha, who is a renowned, noted business journalist and also the associate editor of a reputed The Hindu Business Line. I welcome you all to the special lecture series instituted in the name of a renowned journalist, Mr. BG Varghese. Well, this series was incepted way back in 2016, and during all these years, we have invited many senior media professionals, subject experts, and scholars to deliver, the lecture on a pertinent issue. Well, the topic chosen this time is on election and Indian economy, benefits and challenges. Well, before Sir come and discuss about this topic in detail, I would like to give you a brief introduction about this topic. Well, with this ongoing election and election results outcome, this is one of the prominent topics to be discussed at today's discourse. And I must say that we are fortunate that Shishir Sir himself is here to discuss about this topic. And, the intersection of election and Indian economy present a complex landscape, both with the challenges as well as the benefits. First and foremost, the Indian democracy as the largest of its kind of the world foster the economic stability through continuous transition in accordance with the will of the people. Stability in Indian politics set up is a precursor to thriving business, investment, and of course the confidence. And if we specifically talk about the Indian elections with the model of code of conduct, I think it may lead to significant policy constraints sometime, and it also has an impact on a short-term decision makings. But this might also lead to the last-minute policy push in its incomplete state before the code is applied. So, on the other hand, we all are very well aware that the political parties are bound to promise populist measures such as freebies, which is very popular these days, and it may eventually introduce as a policies after the election outcomes also. And this is going to impact the Indian economy at a very long run when the years to come.
Another significant factor which is also very popular is about the election funding, and it has a great impact, profound impact on the Indian economy as a whole. You must also be already aware of, the recent Supreme Court ruling about the electoral bonds, and significantly it has a great impact. So over the years it is going to have a great impact with the related decisions in future to come. So to discuss this topic in detail, we have Shishir Sinha sir, and I'm actually very thankful to sir that he has accepted our invitation, because I believe that for this topic, nobody comparable to him, in this entire country who can talk about this. So sir, we are very thankful to you, especially, during this election time, you have spared your precious hours and you're here with us today. Thank you very much, sir. Thank you, Garima. Thank you so much, ma'am. Now I would like to extend an invitation to Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DMA Media School, to share his opening remarks with us. This is the most difficult topic, I believe, which Shishirji has kindly agreed to deal with, because we are into the election phase, which will consume this entire month, which is started in April and which will conclude in the first week of June. And Indian economy, there are a lot of perceptions, misconceptions about the whole thing. And this should be understood in the light of the fact that this government has mooted the idea of one nation, one election on so many pretexts, but one major reason that's given by the government and the ruling party, that lot of expenditure happened, government expenditure happened in elections, which is a wastage. But then when you link the politics with economy, so you have to look into the expenditure that is being done by the government in election. That is one part of the whole thing. And then the expenditure which is being done by the political parties in election. And if you simply look back, looking back last 2, 3, 4 elections, that you will find the expenditure of the political parties has been increasing tremendously. And from where all this money is coming, which is very much evident from the Supreme Court judgment on the electoral bonds. So crores and crores of rupees are being are floating from corporate houses to political parties. Whether this whole money, the way this money is come and what kind of money is coming, not only through the electoral bonds, but through other means as well. One very remarkable thing, Shishirji, I came across, I was also not knowing this, that after this electoral bonds were introduced, the earlier practice also continued. So this is a very strange thing. We introduced, according to the government, a very, very ideal system of collection of the donation, which was actually not as per the Supreme Court judgment. But then the earlier practice of giving donations to political parties, that also continued. And that's a very huge, huge amount as compared to the money that came to these political parties through electoral bond. Now, all this money, from where all this money is coming, and whether that is being used to some productive use as far as the contribution to economy is concerned. These are the things which need to be looked into. And as Shashiji was pointing out in a discussion recently, that this whole, which he is covering obviously in his presentation, that this will add to the GST collection, which has been proved. I mean, the day you told me this, next day the GST figures came and it was evident the way there is a continuous increase in GST collection. But at the same time, we also have to look into the way the stock market is falling. So why all this money of the common investors is going down the drain continuously. And as yesterday, Mr. A.K. Bhattacharya was telling, this whole month will be like this. So obviously, whether this is contributing to economy or it is harming the economy. So there are so many factors which we have to look into of economy, right from tax collection to stock market.
and the money of the government and the political parties, where all these linkages can be established to understand this whole relationship between politics and between elections and economy. So I believe many more things will come out today in the lecture of Mr. Shishir Sinha, and many of our perceptions or misconceptions will be removed, and some new light, new thoughts we will be able to understand in today's lecture. Thank you all. Thank you so much, sir. It is my immense pleasure to introduce you all to our today's guest of B.G. Varghese lecture series, Mr. Shishir Sinha, a noted business journalist. For last 24 years, sir is currently working with the Hindu Business Line as an associate editor. He has been associated with organizations like Amar Ujala, Aaj Tak, CNBC Awaz, and many more. He regularly engages himself in government publications like Yojana Journal and Kurukshetra Journal, conducts talk shows related to economic issues on Akashvani, and regularly appears as an expert on DD News, Lok Sabha TV, Rajya Sabha Television. Sir is also visiting faculty at many reputed public institutions like IMC, AKJ Mass Communication Research Center, and many more. It's a pleasure to have you here with us today, sir. Today's session is based on election and Indian economy, benefits and challenges. I would request Mr. Sinha to kindly take the session forward. Good morning, namaskar. First of all, thank you very much for inviting me to talk on this issue, which is being discussed in large at various forums. But before that, let me pay my tribute to Mr. Varghese. We all have been growing with his writing, and he is one of the rare breed of journalists who wrote on something which no one else has written. And being the editor of Indian Express and the Hindustan Times, he was one of the best journalists I have ever come in my life. Of course, I was a student at that time when he was writing in newspaper, but being the student, it was good to read those things. Secondly, I would like to talk about this topic in mix of the language. Hindi, English, चलेगा ना? मिला के चलेगा? क्योंकि क्या होता है ना कि हम कई मौक़ों पर ये कहते हैं कि अंग्रेजी से हमारे घर का चूल्हा चौका चलता है, हिंदी हमारे दिल की भाषा है, और कोई ऐसी बात करनी हो ना तो I always prefer to talk in Hindi. So can you please change that? So if you talk about the general election, these are the four things which I am going to discuss. One, how economy is doing. The second one is the election expenditure. The third one is the parallel economy, and the fourth one is the cost of freebies. देखिए इस समय में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के बहुत सारे डिस्कशंस हुए. एवरीबडी सेड कि पॉलिटिकल पार्टीज हाउ दे विल सर्वाइव और दे आर इन्वॉल्व इन सो मच करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल दोज थिंग. बट द रियलिटी इज कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज जस्ट वन टूल. आप अगर पूरे पॉलिटिकल पार्टी का इकोनॉमिक्स को देखिएगा, उस इकोनॉमिक्स में इलेक्टोरल बॉन्ड इज जस्ट वन टूल. In fact, you will be surprised to know कि none of the political parties is supposed to pay income tax. हम आप जो है ना जितना कमाते हैं एक एक रुपया, और खासतौर पे हम जैसे सैलरीड वाले लोगों की तो सबसे बड़ी परेशानी है कि एक रुपया भी मिलता है तो उस पर 10 पैसा TDS कट जाता है, और उसके बाद वो मेरे टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, और फिर मैं इनकम स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना पड़ता है. बट इफ यू टॉक अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाटसोएवर मनी दे आर गेटिंग, they don't have to pay a single rupee as the income tax. They just have to declare to the income tax that this much money I have collected. That's all. और आपको भी पता होगा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज आए थे. The matter went to Delhi High Court and of course to Supreme Court also on the issue of income tax notice to Congress party. But you know, it was not because they haven't paid the tax. It was because they didn't file the return in time. तो कहानी ये थी. इसलिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. पहला मिसकंसेप्शन ये क्लियर कर लीजिए कि द पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट सपोज टू पे इनकम टैक्स. तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप जितना डिस्कशन कर लीजिए, बट द एंड ऑफ डे वेदर दे आर गेटिंग फ्रॉम ए और बी और सी और डी और ई, इट डजंट मैटर बिकॉज दे डोंट हैव टू पे अ टैक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज. नाउ वी आर सीइंग अनदर ट्रेंड इन द इलेक्शन दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग. आप सभी लोग जानते हो क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है. एंड मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स आर सीकिंग मनी
from various individuals कि आप 10 रुपए भी दे दो, आप 100 रुपए भी दे दो, चलेगा. And you will be surprised to know that one of the candidate in Odisha said कि मेरा crowd funding काम नहीं कर रहा है, हम election नहीं लड़ पाएंगे. And she withdrew from the election. अब आज के समय में ये भी इकोनॉमिक्स है. पॉलिटिकल पार्टी का इकोनॉमिक्स ये भी देख लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पैसे इतने हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जिसको क्राउड फंडिंग से भी पैसा नहीं मिल रहा है, एंड दैट पार्टी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया. तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना होना, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में, तो और मेरा लिखना भी होता है वो केवल इकोनॉमिक्स पे. और आपको मैं बताऊं कि मैं जिस विषय पे लिखता हूं उसको सबसे कम लोग पढ़ते हैं. आप में से कितने लोग बिजनेस और इकोनॉमिक्स पेज पढ़ते हैं अखबार के? सैंपल है, नहीं पढ़ते लोग, और उस विषय पे मुझे लिखना पड़ता है. तो जाहिर सी बात है कि मुझे जब तक ऐसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स नहीं लाने पड़ेंगे तब तक मेरी राइटिंग को कोई पढ़ेगा नहीं. So today I am going to discuss about all those things. So first of all, let me talk about how the economy is doing. Please change the slide. So if you see the economy, Indian economy, we are seeing that कि FY24, which is 2023-24 जो हम लोग financial कहते हैं, where we are seeing the growth of 7.6%. And if you see the trend, आपने एक चीज नोटिस किया, ये कौन सा लेटर बन रहा है? This is called V-shaped recovery. आपको पता होगा ना, इकोनॉमिक्स को लेकर के कई बार आता है. इनफैक्ट इंग्लिश का हर अल्फाबेट इकोनॉमिक्स को इंडिकेट करता है. वेदर वी टॉक अबाउट A, B, C, D, E, F, कोई भी आप अल्फाबेट देख लो. और आज के समय में दो डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है, वेदर इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग के शेप रिकवरी और वी शेप रिकवरी. कुछ लोग कहते हैं W शेप रिकवरी, बट एक्चुअली इफ यू सी दिस ट्रेंड, वी आर सीइंग V शेप रिकवरी. द सेकेंड पार्ट कि कौन सा एरिया ज्यादा बढ़ रहा है. आपको पता है इंडियन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 सेगमेंट. वन इज कॉल्ड प्राइमरी, द सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज कहते हैं. इफ यू सी द ट्रेंड, द ग्रीन लाइंस विच इज डाउन, यानी कि एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. दैट मीन्स द रूरल इकोनॉमी इज इन डिस्ट्रेस. बट इफ यू सी द इंडस्ट्री, इट्स डूइंग वेल, बट it still has to pick up, and the services which was doing well, now it is slightly coming down. तो हमको जब कभी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को समझना हो तो फर्स्ट विल हैव टू थिंक अबाउट हाउ द इंडियन इकोनॉमिक्स इज डूइंग, एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. प्लीज चेंज द स्लाइड नाउ. इफ यू सी दिस, these two numbers also, the first one is about the services के services का शेयर कितना है. So Indian economy is dominated by the services sector. And then we have the industry, and then we have the agriculture. If you see on the right hand side of the thing, this is called per capita income. The good thing is that per capita income has crossed 1 lakh rupees. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है. But please remember, this is average per capita income. And the number 2, that this is not evenly distributed. That is why we are seeing a lot of distress, not just in rural area, but also in urban area. So that distress we are facing. Next slide, please. Now, if we see the numbers, see some numbers you have to remember. हमारा बजट का साइज आप देखो 47.66 लाख करोड़ का है. And if you see the general election, there are all-time high number of people who are going to vote. 97 करोड़. आप में से कितने लोग वोटर्स हो? Oh wow, amazing. सारे लोग आप वोटर्स हो. So you are part of that 97 crore people. 2660 recognized political party, and this is the longest ever election after 1952, जब 82 दिन लगेंगे इलेक्शन कंप्लीट होने में. और ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. 82 दिन का टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है. हमारा जो इस साल का एक्सपेक्टेशन है कि वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ टू 1.35 लाख करोड़ ऑन इलेक्शन, विच इज 2.5 to 2.8% ऑफ यूनियन बजट. आपको पता है मनरेगा पे गवर्नमेंट 70,000 करोड़ रुपीस खर्च करती है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी 2 मनरेगास ऑन दिस जनरल इलेक्शन.
आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड बूस्टर टू द इकोनॉमिक्स, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज इज डोमिनेटिंग द इकोनॉमिक्स, सो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, हायर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू हेल्प द सर्विसेज सेक्टर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So what are the poll expenses we are talking about? There are two category of expenses. One is the government and then one by the candidate. Government कहाँ खर्च करती है? Purchasing of EVM poll materials, poll arrangement, and if you talk about the candidate, campaigning expenses within the limit and unaccounted expenses. आपको पता है कि अगर एक कैंडिडेट ₹1 खर्च करता है लीगल वे में, तो वो कम से कम ₹4 इलीगल वे में खर्च करता है. बट द गुड थिंग इज दैट इट इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी. देखिए, आप चाहे इस जेब से खर्च करें, चाहे नीचे किसी और जेब से खर्च करें, इट इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग दैट मीन्स यू आर पेइंग टैक्स. भाई जीएसटी है ना, जीएसटी क्या है? इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन. सो अल्टीमेट कंज्यूमर हैज टू पे द टैक्स. सो इवन समबडी इज बाइंग सम गुड्स, वहां पर जीएसटी पे करना है. आज आपको पता है इलेक्शन में सबसे ज्यादा सेल किस चीज की होती है? किस चीज की होती है बताइए? सबसे ज्यादा सेल इलेक्शन में क्या होता है? एग्जैक्टली, अल्कोहल. और आपको पता है कि अल्कोहल ने कोविड के बाद की इकोनॉमी को रिकवर करने में सबसे हेल्प किया, क्योंकि द काइंड ऑफ कलेक्शन वी हैड थ्रू द अल्कोहल वाज ह्यूज. और आज के दिन में, आज की भी अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बजट का एक बड़ा हिस्सा अल्कोहल से आता है. इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, आई मीन दिल्ली में आपको परचून की दुकान जितनी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा शराब की दुकानें मिलती हैं. और वो शराब नहीं है, नहीं है, है ना? तो आप बताइए आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, वेदर यू वांट टू बाय परचून और वेदर यू वांट टू बाय अल्कोहल? टेल मी, प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? परचून होगी. और किसके लिए क्या होगी? अच्छा, इनके लिए वो होगी. अच्छा, आपकी ओर इशारा कर रहे हैं वो? हाँ, आप ही की बात मैं कर रहा हूं मैं. हाँ जी, आपकी जी. सो एनीवे, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड. देखिए, शराब पीना गलत नहीं है. एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रेवेन्यू. एंड अल्कोहल पे टैक्स देने में किसी को नाराजगी नहीं होती. आप बताओ ना, सिन गुड्स पे टैक्स पे करने में किसी को नाराजगी है? आप में से बहुत सारे लोग सिगरेटिये होंगे, एम आई राइट? है ना? अब जो सिगरेट खरीदने जाते हो, कभी आप पूछते हो कितना जीएसटी है? पूछते हो आप? शराब खरीदने जाते हो, कभी एमआरपी पढ़ते हो क्या? शराब की दुकान पर सबसे अच्छा अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझना हो तो शराब की दुकान को देखो आप. सॉरी, मैं शराब के ऊपर इतना डिस्कशन कर रहा हूं. आप कहोगे मैं इलेक्शन पे आया था, शराब पे चला गया, लेकिन थोड़ी सी बात शराब पे कर लूं क्योंकि उसका क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इस पूरे डिस्कशन में. आपने देखा होगा कि रेहड़ी वालों से हम जितना मोल भाव करते हैं, शराब की दुकान पे कभी मोल भाव करते नहीं है करते हैं? वहां तो ऐसा होता है, जाते दुकान पे कहते पौवा दे दो, अद्धा दे दो, बोतल दे दो, और उसको 500 का नोट पकड़ाया, ये भी पता नहीं कि उस पे एमआरपी क्या लिखा है. तो दवा और दारू दोनों के मामले में हमारे लिए एमआरपी और बिल कोई मायने नहीं रखता. सच्चाई है. और गवर्नमेंट के लिए यह सबसे पॉजिटिव फैक्टर है. व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज द काइंड ऑफ टैक्सेशन on alcohol is huge. The kind of taxation on tobacco and cigarette is huge. Even the kind of taxation on the medicine is not so low, 5% and 12%. It's not low, exempted nahi hai. So if we talk about the government expenditure, if we talk about the earning for the government, these few things are very, very important. And if the alcohol sales are going up, that means the state revenue will go up. And you will be surprised by the end of fiscal year 25, which is going on 24-25, आपको पता चलेगा कि स्टेट का रेवेन्यू काफी तेजी से आगे बढ़ा है. Because please remember, alcohol is not part of the central taxation. It is also only part of the state government taxation. तो केवल और केवल फायदा स्टेट गवर्नमेंट को होगा. Because
there will be huge sale. And that is one thing which is going to impact the economy. Now, if we talk about the candidate expenditure, that is very, very important. Please change the slide. So this is the cost of expenditure on election from 1952 to 2015. Can you count the zeros? Amount पढ़ पाओगे आप लोग? कहोगे पता नहीं सुबह सुबह कौन ये आदमी आ गया, संबित पात्रा और गौरव बल्लभ वाली कहानी सुना दी. ओके, जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला मैं आपको नंबर पढ़ने का बता देता हूं. स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम हियर. सो इफ देर आर 3 zeros, 1000, 3 digit there are 1000, 4 digit 10,000, 5 digit lakhs, 6 digit and 7 digit crore. तो आप 7 digit, if you remember this 7 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now can you read that? Exactly. That means the cost of election is 3,870 crore in 2014. And if you see the 1952, it was the cost. Can you read the number now for the 1952? It's just 10 crore. तो आप सोचो कि हम 10.5 करोड़ से we have reached 3,870. Right? Now just remember the last, start from here. So if there are 3,000, 4, 10,000, 5 lakhs, 6, 10 lakhs and 7, a crore. This 7, 2, 4, 3, that's 7. आप ऐसे काउंट करो. तो नंबर पढ़ने का यही तरीका होता है. और इकोनॉमिक्स में आपको नंबर खूब पढ़ना होता है, इसीलिए ये सारे जो गुण हैं वो सीखे हमने इसीलिए क्योंकि हमको पढ़ना पड़ता है. बट टू कट शॉर्ट दिस होल थिंग, द फर्स्ट इलेक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट जस्ट 10.4 करोड़. 2014 election cost 3,870 crore. And 2019, the number is yet to be made official. It is estimated around 5,500 crore. And this time, we are expecting more than 7,000 crore rupees just by the government. Just by the government. So government का तो cost ये है. Then there are expenditure incurred by political parties, by the candidates. Next slide, please. Now, if you talk about the per candidate expenditure, see the number of voters has went up from 83.4 crore to 93.6 crore, and this year it is 97 crore, more than 97 crore. And this is the most important part, cost inflation. कहते हैं ना महंगाई ने हम सभी को प्रभावित किया है. We all have been affected by the inflation. Even the election is impacted by the inflation. And because of the increase in the cost inflation, the government has to increase the total expenditure spent by a candidate. And that is the reason why the per candidate expenditure limit has gone up. Next slide, please. So if you see per candidate, the limit is now 95 lakh officially. ये सरकारी है. हर कैंडिडेट को अपने कंस्टिट्यूएंसी में 95 लाख रुपीस खर्च करने का, विच इज वेरी क्लोज टू 1 करोड़. तो आप सोचो कि हमारे कितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं? हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज वी हैव? 545, and we have the election for 543. 2 candidates are nominated by the Anglo-Indian community. तो हमारे पास इलेक्शन कितने कैंडिडेट कितने के लिए होता है? 543. Multiply the 543 by 95. Take even 1 crore. So you have direct explanation. कितने करोड़ हो गए? 543 crore. That is the official. Unofficial तो छोड़ ही दो आप. अच्छा, इस समय में 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन भी हो रहे हैं और असेंबली इलेक्शन का लिमिट अलग है. That's a 40 lakh. So if the each of the state has more than say 100 or 150 seats, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. So imagine how much money is being spent officially by the candidate on the election.
और ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा किस काम में जाता है? पैसा जाता है टू बाई गुड्स, टू अवेल सर्विसेज, एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू benefit the government exchequer, because government is going to get tax on that. That's the GST. They are going to get GST on that. So this is the amount. Next slide, please. And just see how much it has gone. 0.252. Now we have the 95 lakh. Just see. पूरा का पूरा ये पिछले आप देखोगे 2004 से 2024 के बीच में the entire election economics has changed. Why it has changed? Because of the per candidate expenditure limit has gone up, and that is going to boost the Indian economy. ये भी एक irony है. अभी प्रोफेसर पारुल बात कर रही थी कि because of the election and because of the model code of conduct, we do not take any policy decision. That's a fact. That's the reality. But at the same time, there is no stoppage on taking decision which are continuous in nature. अगर आप एक नई पॉलिसी आप नहीं ले पा रहे हो, जो पॉलिसी चल रही है उसमें कुछ चेंज करना हो, उसमें आप इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल से आप उस पर परमिशन ले सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, दिस इज द ऑफिशियल नंबर, एंड इफ यू जस्ट गो टू ADR, हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard about this term ADR? Any one of you have heard about this organization? ADR is the agency which tracks the election in India. That's the Association for Democratic Reforms. अगर आप में से जिनको भी इंटरेस्ट होना, प्लीज विजिट दिस वेबसाइट ऑफ ADR एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स कि हाउ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वर्क, कैसे काम करता है. एंड देयर यू विल फाइंड दैट द एक्सपेंडिचर बाय द कैंडिडेट, एक्सपेंडिचर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज हैव स्टार कैंपेनर्स. एक स्टार कैंपेनर जब आता है उसके ऊपर आपको अलग खर्च करने पड़ते हैं. So overall, the expenditure will go up. Next slide, please. So just see how much election spending by the political parties. In 2019, BJP spent more than 1,000 crore, Congress spent more than 600 crore, AITC spent more than 73 crore, and this is just a list of 6 national recognized party. I am not talking about the state recognized party and unrecognized political party. So if you take the whole sum, you will be surprised to know that number was 60,000 crore. 60,000 crore. आप सोचो 2019 में इलेक्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज ने 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे. Isn't it a small number? It's a huge number. And now we are talking about expenditure of 1.2 to 1.35 lakh crore, just doubled. 5 साल में अगर इन्फ्लेशन को मेजर करना हो तो इससे अच्छा कोई स्केल नहीं है. कहते हैं ना, हम सभी लोग कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई है. कहां बढ़ी है ये देखो. If you are going to talk to the political party, you can throw these figures to them that you spent 60,000 crore and now you are spending 1.2 to 1.35 lakh crore and you say that inflation is under control. No, it's not correct. आप बोलिए, क्योंकि जब आपके खर्च करने की बारी आती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है. आम जनता आपसे इन्फ्लेशन की बात करती है तो आप कहते हो इन्फ्लेशन नहीं है. Have you seen comments by all those people? और एक डेटा के मामले में सबसे एक अजीब सी कहानी क्या होती है कि इकोनॉमिस्ट्स हैव वन एडवांटेज, डेटा को अपने चश्मे से देखने का. हम सभी लोग, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डेटा पे मैं खूब लिखता हूं मैं, और कई बार ऐसा होता है कि डेटा के उस साइड को मैं नहीं लिख पाता हूं किसी ना किसी कारण की वजह से, या मुझे दिखता नहीं है जो वाकई में लोगों को इंपैक्ट करता है. लाइक वन डेटा which came out just a day before yesterday that says कि household saving has come down. लोग बचा नहीं रहे हैं. आपके घर में भी देखिए, जिनके खास तौर पे जो सर्विसेज क्लास के होंगे उनके पास बचाने को पैसा कम बच रहा है. डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कम है बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन. एंड यू विल बी सरप्राइज कि आज के दिन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके इन्फ्लेशन को तो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, आप हर रोज उसका इस्तेमाल करते हो. कैन यू थिंक ऑफ वन प्रोडक्ट आप हर रोज इस्तेमाल करते हो, उसके इन्फ्लेशन के बारे में आप चर्चा नहीं करते. कैन यू नेम दैट प्रोडक्ट? कम अगेन? नो, इट्स नॉट मिल्क.
रोज और खास तौर पे आप लोग आलू, पोटैटो, आप सब्जी बनाते हो ना घर में? नहीं बनाते आप? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बनाते हो तो आई मीन सॉरी, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं मैं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि आज हम आलू के इन्फ्लेशन पे बात नहीं करें, बट यू विल बी सरप्राइज दैट द पोटैटो इन्फ्लेशन हैज गॉन अप बाय 40%। अब आप सोचो कि हम इस नंबर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर स्पेंडिंग मोर कंसाइटिंग इन्फ्लेशन, वी आर हैविंग लेसर डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बट फॉर अस द इन्फ्लेशन इज नॉट देयर, बट फॉर देम इन्फ्लेशन इज देयर। दिस इज द आयरनी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इलेक्शन इकोनॉमिक्स का इससे बड़ा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है कि एक आम आदमी के लिए आलू महंगा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब स्पेंड करती है तो उनके लिए इन्फ्लेशन अलग तरीके से काम करता है। सो एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, you have to think about how the inflation works for a political party and how it works for an individual. Next slide, please. Now this say state wise election expenses per state average hai. So if you see, I mean the maximum inflation was in a state called Tripura. Imagine Tripura has the maximum expenditure. अब आप सोचो कि नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट, लेकिन वहां पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट इज मैक्सिमम, है ना? ये भी एक आयरनी है। दिस इज ऑल्सो आयरनी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पर स्टेट, स्मॉल स्टेट लाइक दिस थिंग, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बिगर स्टेट, द एक्सपेंडिचर इज लेस। बट यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इन स्टेट लाइक त्रिपुरा, the transparency in reporting expenditure is much better than the bigger state. Like in Bihar, in Uttar Pradesh, in Paschim Bengal, or in say Maharashtra, or in Gujarat, Tamil Nadu, Telangana, in these states, the reporting is not very transparent. And that is why you will find that the average income reported by the political parties to the election commission is lesser than Tripura or Nagaland, because there the people are giving better figures. ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम सही में पता कर सके कि किसी जगह पे क्या खर्च हो रहा है। एंड इमेजिन लाइक इन से इन गौतम बुद्ध नगर, दिस गौतम बुद्ध नगर constituency is very large. Now it has exceeded almost to say शाहजहांपुर and then Meerut this side and here to touching Delhi. इतना बड़ा हो चुका है। So if you think that the Mahesh Sharma who is candidate for Gautam Buddha Nagar, if he is spending just 95 lakh rupees, I am sorry. He is not. And you can challenge easily and you can yourself find कि 95 lakh में ये election लड़ा ही नहीं जा सकता। So that is why if you see this data, this is the official data. We don't have any other option but to trust this data, क्योंकि ये official है. But unofficially, informally, the numbers are much, much higher. Next slide, please. Now, this expenditure, how we track the expenditure? The first thing is that candidate needs to submit expenses within 90 days. Political parties are also expected to submit to expenses. अब आपको पता है कि administration तय करता है कि एक सामान का दाम कितना होगा. You will be surprised in Gautam Buddha Nagar, the price of a samosa which has been fixed by the administration is 8 rupees. कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है? 8 रुपए का समोसा मिनिमम 10 रुपए का होगा, है ना? गोलगप्पे कितने का है? और गोलगप्पे के साथ एक बड़ी अजीब सी कहानी है. सॉरी एक बार फिर थोड़ा भटक रहा हूं अपने विषय से. गोलगप्पे पे इकोनॉमिक्स का कोई लॉ चालू नहीं होता. गोलगप्पे पे इकोनॉमिक्स का कोई लॉ लागू नहीं होता. वी हैव अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आप में से कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है? गुड. यू नो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? यू नो क्या है? अच्छा शिशिर जी, एक चीज़ मैं भी उठाना चाहूँ. आपने जो एक्सपेंडिचर की बात की तो सीलिंग है जो कैंडिडेट के ऊपर, जैसे अभी आपने गौतम बुद्ध नगर का उदाहरण दिया, तो हर जगह सीलिंग है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसा कैंडिडेट खर्च कर सकता है. What about the expenditure being done by the political party? I'm coming to that, sir. I'm coming to that. जो 95 लाख रुपीस जो पर कैंडिडेट एक्सपेंडिचर है, this is done by the candidate as well as the political party.
but this excludes the expenditure on the star campaigners. This excludes campaigning or some kind of security arrangement for say candidate like Prime Minister or say very high VVIP candidate. So some of the expenditures are not involved. This 95 lakh ceiling for the larger state, and for the smaller state it is 75 lakh. I believe the advertising being done by the political party is also not. Exactly. I'm coming to that point also. When the star campaigner expenditure, advertisement expenses by the political party per se, and it should be generic in nature and not the candidate per se, that is not part of the 95 lakh rupees. So there are two things, 95 lakh and the 75 lakh. 95 lakh for the larger, 75 lakh for the smaller state, and this is not including expenses on star campaigner, it's not including generic expenditure on advertisement, generic advertisement, and some other expenditure by the political party. So these are the things which you should keep in. One thing more, I mean, on what basis these figures are decided 95 lakhs or 75 lakhs? That is purely on the cost inflation index. If you थोड़ा पीछे ले चलिएगा, 3 स्लाइड पीछे, और पीछे, और पीछे, और एक और. Sir, if you see this cost inflation index, that is the key of determining 95 lakh rupees. So if we see this cost inflation index, it has seen a growth of 32% between 2014 to 2021. This limit was decided in 2022 based on this index. And if you see, in other example I can tell you, sir, if you see the overall inflation number, there are state-wise inflation numbers also. So some of the states are above the national average and some of the states are below the national average. You will find that most of the large states are having inflation higher than the national average. So on the basis of these things, this... But at the moment, this figure 95 and 75, it is for constituencies of all sizes, or it's different? It's a constituency of all the larger state. When we talk about 95 lakhs, it is for all the larger state, 75 lakh for all the smaller states and the northeastern states, and some of the hilly states like Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir. And then there are also a limit for the state election. If you see the next slide, please. If you see the next one, sir, for the next one, please. That 40 lakh and the 28 lakh. 40 lakh for the larger state and 28 lakh for smaller state. And this is for all the constituency in that state. Like in Delhi, we have the 7 Lok Sabha constituency and there are 70 assembly constituency. So in Delhi, for each of the Lok Sabha constituency, a candidate can spend 95 lakh rupees. And for with assembly election, each of the candidate can spend 40 lakh rupees. But why there is no relationship between this ceiling and the per capita income? I mean, asking for from completely economic point of view. See, when we talk about the per capita income is related with the voters per se. When we talk about the election expenses, it is done by the political party, not by the individuals. So you cannot connect these two. But if you talk about the welfare scheme, then you have to consider about the per capita income. When we are talking about the expenditure by the political party, that is related with the considering the size of the each of the constituency or size of the state, and accordingly decide on that. And also think about that what kind of inflation was there. So since we cannot have कि उत्तर प्रदेश के लिए आप अलग लिमिट कर दो, बिहार के लिए आप अलग लिमिट कर दो, this cannot happen. So out of the 28 states and the 8 union territories, they have been categorized into 2, larger state and the smaller state and the union territory, and accordingly that has been determined. Per capita is not related because it is related with the political party, not with the individual. Clear, sir? Yeah. Now the next part, which is very important, that how this is going to impact the overall economy. Now, मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूं. मैं पिछले लगभग 35 दिनों में मैंने करीबन 15,000 किलोमीटर का जर्नी तय किया है to cover election. Now, wherever I am going, either I am using cab or train or flight, I am staying in a hotel, eating some food. That means I am contributing in the political expenditure. That expenditure is critical. उसी तरीके से आप देखो कि कैंडिडेट जब जाता है, candidates alone is not moving now. There are a lot of people who are behind the candidates. In many of the constituencies, people are called from the other constituencies. Like tomorrow, I'm going to say UP.
Prime Minister Modi is going to file nomination on 14th of this month, and you will be surprised, hotel fare in Varanasi has touched 20,000 rupees per night in a very, very budget hotel. आप सोचो 20,000 रुपये एक रात का, and it's a very basic hotel. तो वो expenses जो है वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है. दैट 20,000 इज इन अ वाइट. ये भी नहीं है कि आपको कहीं नीचे टेबल से देना है, वो 20,000 आपको अप फ्रंट देने हैं थ्रू द डिजिटल मीन. सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन गेस्ट बूस्ट, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. सबसे बड़ा फायदा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि अल्कोहल इज वन एरिया where the government is going to, state government is going to get more revenue. Services area, services sector is going to get very good revenue on account of this kind of expenditure. And then सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? इन्फ्लेशन. जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आपको पोटैटो, यू विल बी सरप्राइज कि अगला जो इन्फ्लेशन का हमारा होने वाला है, आप सभी लोग थोड़े परेशान होइएगा. ओनियन इज गोइंग टू हर्ट यू लाइक एनीथिंग, because the rabi production of onion has come down. तो प्याज अभी रुलाना बाकी है. और हमारे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी ट्रैक टॉप TOP, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो. तो TOP में P ऊपर है, O ऊपर जाने वाला है. वो एक्सपोर्ट भी कर दिया ना, तो एक्सपोर्ट भी कर दिया. प्लस हमारा प्रॉब्लम ये है, अब वो एक्सपोर्ट का जो डिसीजन है प्योर पॉलिटिकल डिसीजन है, बिकॉज महाराष्ट्र एंड ऑल दोस. बट द एंड ऑफ डे, since the rabi production has come down, the prices has started moving. And I can tell you, between last month and this month, the prices of potatoes have gone up by almost 40%. 40%. Can you believe this? Onion prices have gone up. Tomato थोड़ा कम है, वही थोड़ा रिलीफ. जो अच्छी क्वालिटी का ऑनियन है वो भी मार्केट से गायब हो गया है. And if you talk about the green vegetables, all the green vegetables, अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा आप क्या खाते हो? करेला. आलू तो है ही, हरी सब्जी की बात कर रहा हूं मैं. आप कभी भाव, आप लोग जाते हो सब्जी लेने? जाते हो ना, ट्रैक करना आप प्राइसेस. पता है ना, सबके बढ़ गए. आप बताओ. प्याज के, वही तो मैं कह रहा हूं कि O और P दो तो बढ़ गए, और तीसरा जो T जो है वो भी अब बढ़ने वाला है. तो हमारे लिए आज के दिन में प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, और ये इलेक्शन एक्सपेंसेस का हाई होना आपके एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएगा. दैट मीन्स इन्फ्लेशन विल गो अप. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? हे स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? ये है ना, बोलो. अरे यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे लगता है 25-30 साल हो गए. और कौन है इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट? अभी 3-4 लोग हाथ उठाए थे, अब सब ने, अब कोई नहीं उठाएगा. अब कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? कम अगेन. रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस एंड दैट्स इट. ओके, और कौन बताएगा? Like if the quantity will also decrease, but and rates are exceeded over the limit, so it will be the inflation. Okay. डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम. When the income is same and the prices of the commodities increase, that is inflation. Okay, good. So you have three definitions: prices, demand and supply. And you know the best definition of inflation is too much money chasing too few goods. That's a simple explanation. Samuelson का ये, Professor J. Samuelson, have you heard his name? He is one of the best economists in the history of economics. Samuelson gave this definition: too much money chasing too few goods. That means when the expenditure is high, when the people are spending more and more, that is going to impact the inflation. और अभी के समय में आपको पता है हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है? विच इन्फ्लेशन वी ट्रैक? कौन सा इन्फ्लेशन ट्रैक करते हैं?
कोई बात नहीं. We have two inflation. One is called WPI based inflation and the other one is called CPI based inflation. WPI inflation is the थोक का inflation, थोक की महंगाई दर, and CPI inflation is the retail inflation. So we call retail inflation based on consumer price index and wholesale inflation based on the wholesale price index. हम लोग क्या track करते हैं? Retail inflation. And we have the band of 2 to 6% which is set by the government and the RBI. तो हमारा इन्फ्लेशन अगर 2 से 6 के बीच में है तो कंफर्ट है. बट इफ इट इज मोर देन 4% विच इज द मीडियन रेट, दैट इज नॉट अ गुड साइन. और हमारा इन्फ्लेशन अभी 4% के ऊपर है. दैट मीन्स हमारे लिए कंफर्ट सिचुएशन नहीं है. एंड देयर बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपेंडिचर वी आर गोइंग टू हैव द हायर इन्फ्लेशन. दैट इज गोइंग टू हर्ट अस. नंबर 2, पैरेलल इकोनॉमी. पैरेलल इकोनॉमी में क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट द ब्लैक मनी. I mean, when the people are coming to you and say कि आप मुझे वोट दो और ये 500 रुपये रखो. आपको पता है ना, बहुत सारे जो स्लम एरियाज होते हैं वहां पर शराब और पैसे बांटे जाते हैं. ये पैरेलल इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. So if we are talking about the official figure of 1.2 lakh crore to 1.35 lakh crore as the official estimation of the expenditure, the parallel economy will be more than 4 to 5 lakh crore rupees. Imagine, आपका 5 lakh crore rupees का parallel economy खड़ा होगा which is going to hurt the economy in other way. That is another part of the political and the election expenditure. Next slide please. If we talk about the parallel economy, just see, इस साल अभी भी जब इलेक्शन वोटिंग प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, एवरी डे द सीजर वाज 100 करोड़. हर रोज 100 करोड़ पे मिल रहे थे ऑन एन एवरेज. आप सोचो कि जब वोटिंग चल रही है उस समय ये अमाउंट कितना बढ़ जाएगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल इकोनॉमी विच वी आर गोइंग टू हैव ड्यूरिंग दिस इलेक्शन एंड दैट इज गोइंग टू हर्ट द इकोनॉमिक्स. क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी का होना इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए बेटर है, बट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ गुड साइन. एंड प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल रेवेन्यू, 50% इज द इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड 50% इज द डायरेक्ट टैक्सेशन. तो हमारा 50% को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन रिमेनिंग 50% को बेनिफिट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कि आपका इकोनॉमिक्स इम्बैलेंस पड़ता है. सो पैरेलल इकोनॉमिक्स इज नॉट अ गुड थिंग. पैरेलल इकोनॉमी इज नॉट अ गुड थिंग. But unfortunately, this election we are going to see this kind of parallel economy. Next slide, please. Now, this is one thing जो सबसे ज़्यादा इस समय डिस्कशन में है, रेबड़ी, freebies. And this whole discussion started on 2022 when the Prime Minister gave a speech on this thing. कि किस तरीके से रेबड़ी हमारे लिए नुकसान कर रहा है. And you know, many of the time you as a voter, you will say, इसमें बुरा क्या है? Like in Delhi, each and every woman is entitled to travel free on bus. बस में 1 रुपया नहीं देना है. अभी कर्नाटक में एक स्टोरी आई कि कर्नाटक में विमेन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार फ्लंग प्लेसेस जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव टू पे बस फेयर. अब बताइए कि आपके लिए तो ये फायदा है लेकिन बस को चलाने के लिए डीजल चाहिए. अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट होता है. हु विल बियर दैट? सो दैट इज द क्रिटिकल पार्ट, दैट व्हाट इज फ्रीबी, रेबड़ी क्या है. अब अगर हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली में, जैसे दिल्ली की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली बिल्कुल बगल में है. दिल्ली में कहते हैं 20,000 लीटर तक के पानी पे 1 रुपया आपको पानी का बिल नहीं देना है. 200 यूनिट तक का बिजली का कंजम्पशन करिए, आपको 1 पैसा नहीं देना है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. आपको यकीन नहीं होगा, पूरे साल से मेरे पानी का बिल 0 आया है. आई एम वेरी हैप्पी. केजरीवाल जी जिंदाबाद. भाई मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुझे पानी का 1 रुपया नहीं चुकाना है. बट इज इट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल? Certainly not, because the cost of processing the water and taking it to your home has something, some amount is there. You have to consider about that. So the big question is that what is freebie? What is रेवड़ी? So now the next 4 slides in Hindi. अभी तक आपके सामने जितने slides थे वो English में थे. अब next 4 slides are in Hindi. Next slide please. So before that we need to understand the 3 things. When we talk about the states, from where they get money, center, their own sources and
their own non-tax sources. आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, because when we are considering the election economics or the political economics, स्टेट को पैसा कहां से मिलता है, राज्य को पैसा कहां से मिलता है, वो आपको समझना जरूरी है. How many states we have? किसने कहा 29? और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? ओके, कोई बात नहीं. आपको पता है यूनियन टेरिटरी को स्टेट के बराबर पैसा नहीं मिलता है. यू हैव टू कीप इन माइंड. जैसे दिल्ली में इफ say one party, one political party is giving assurance that I am going to give you free bus service, I am going to give you this free, that free, and same thing happened in Punjab. दिल्ली का इकोनॉमिक्स नहीं बिगड़ा, पंजाब का इकोनॉमिक्स बिगड़ गया. Have you noticed that? Why? Because Punjab is getting money in a different way than Delhi. So as a student of journalism, and if you are talking about the political economics and the election economics, you have to understand कि state को पैसा कहाँ से मिलता है और union territories को पैसा कहाँ से मिलता है. So these are the three sources. Next slide, please. We have these are the three sub sources of various things. Next slide, please. Next पे आइए. Now this is the important slide. Why this is important slide? If you see the total thing, how much they are getting. Now this one, if you see this, Bihar is getting 75% from the center and own tax revenue is lesser. Why Bihar is having own tax revenue lesser? Any idea? lesser developed area है थोड़ा. नहीं. बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिहार इज अ ड्राई स्टेट. यू नो दैट? ऑफिशियली वहां पे अल्कोहल बैन है. प्लीज साइलेंस प्लीज. तो बिहार सरकार को एवरी ईयर दे आर लूजिंग 3,000 करोड़ रुपीज. एंड सम स्टेट्स हु आर हैविंग मोर इनकम, बट इफ दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन एक्सपेंसेस लाइक दिस थिंग, लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ पंजाब. अब पंजाब में, कर्नाटक में, हिमाचल में, they are spending more and more money on some of the schemes where they are not earning even a single rupee. Like if you say I am going to give you free power, बिजली मुफ्त में आती है क्या? So that means state has to be a, और state को पैसा कहां से मिल रहा है? सेंटर से मिल रहा है और अपने own sources से मिल रहा है. सेंटर ये नहीं कह सकता है कि I will give you more money because you are spending this much on this thing. They cannot do that. It is not possible because the Finance Commission clearly says that out of the central money you have to pay only 42% to the states. तो वो जो 41%, तो वो 41% में आप ये नहीं कह सकते कि बिहार को हम ज़्यादा देंगे क्योंकि वो ड्राई स्टेट है और दिल्ली को हम कम देंगे, दिल्ली को तो मिलता भी नहीं है. पंजाब को हम कम देंगे क्योंकि पंजाब को अल्कोहल वहाँ पे टैक्स लगता है. They cannot make a differentiation like that. But if we have a situation when the earning is less, and when you are going for more and more revenue expenditure, then you are going to be in soup. You know the difference between capital expenditure and the revenue expenditure? Anyone? Capital, yeah, please. Capital expenditures are those expenditure which are we are selling any asset, so we are getting that particular income which it will be kept in the capital receipts, and if we are collecting any revenue from the taxes and the remittance, so it will become in the revenue receipts. You talking about the receipt, I am talking about the expenditure. Okay, expenditures, we are spending on something, like we are creating any asset, like we are creating any hospital, so it will cover in the capital expenditure, and like we are giving some remittance or subsidies to the public, so it will be captured in the revenue expenditure maybe. Very good. So capital expenditure and the revenue expenditure. Capital expenditure is done to create capital. Revenue expenditure is done to maintain that capital. That is a very basic definition. अब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप कैपिटल असेट क्रिएट नहीं करोगे, that means you are not going to generate the capital and the income for the future, and that is going to impact your economy. So that is why
when we talk about the expenditure of various states, some of the states are in soup because there the revenue expenditure is very high, capital expenditure is very low, and that system is continued for a long time. And that has happened because they are spending more on some of the schemes which are considered what we call as the रेवड़ी, फ्री वाले. जब आप उस पर खर्च ज़्यादा करते हो तो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो जस्ट सी दिस एज अ टोटल साइज, द प्राइस ऑफ द फ्रीबीज, ये रिजर्व बैंक का डेटा है. जस्ट सी दैट पंजाब, आंध्र प्रदेश, जस्ट सी दीज टू स्टेट, 2.7% of their GSDP, that means their GDP, they are spending on freebie. And if you say the revenue receipt 17.8% and own tax revenue 45.4%, यानी कि आप अपने से जितना कमा रहे हो उसका लगभग आधा आप freebies पे खर्च कर रहे हो. Is this going to benefit the state? Certainly not. And please remember, when we talk about the national GDP, it is nothing but the sum of the GSDP of all the states and union territories. तो अगर एक स्टेट अच्छा नहीं कर रहा है, 4 स्टेट अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपका जीडीपी डाउन होगा. So that is why it is critical to understand the GSDP. GSDP, what is the full form of GSDP? Gross State Domestic Product. We have the GDP, Gross Domestic Product for the national, and GSDP for the state. तो अगर GSDP कम होगा तो आपका GDP affect होगा. And when the GSDP is down because of some kind of expenditure thing, that means your overall economic interest will be affected. अब आपने अभी का इलेक्शन देखो. अभी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में अलग अलग इश्यूज आए हैं. Some political parties are assuring loan waiver. Many of you will say, अरे नहीं नहीं बिल्कुल होना चाहिए, फार्मर्स का लोन वेवर होना चाहिए, फार्मर्स को क्यों इतनी तकलीफ देनी चाहिए. देयर आर सो मेनी लॉजिक्स. एक लॉजिक ये आता है कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का 17,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ करते हैं. दिस इज द बिगेस्ट व्हाट वी कॉल से मिथ. पहली बात, वो रिटर्न ऑफ होना इज नॉट कर्ज माफी. आपको ये ध्यान रखना है. When we say कि इतना written off हुआ है, that is not taking out money. So when we talk about the loan waiver, you know what happens? The farmers are in a bad position because of the loan waiver. You will be surprised. आपको लगेगा कि मैं anti farmer हूँ. No, I'm not anti farmer. But how the farmers are affected because of the loan waiver? Have you ever heard about this thing? You haven't heard. Because the political parties do not build narrative on that. You know, when the loan is waived for a farmer, that means his civil score gone down. Civil, you know civil? Huh? You? Yeah, I will explain you. Suppose that your parents are taking loan, right? Or your parent has taken a loan. They are paying EMI every month, right? In case they fail to pay the EMI for 2 or 3 months, then it becomes NPA. And if your father approaches another bank for a loan, that particular bank will say कि आपका सिविल स्कोर डाउन है जी, हम आपको लोन नहीं दे सकते because आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. Am I right? Now coming to the farmer. When the farmer's loans are waived off, in the book it is said that he has not paid. He will not be declared as a defaulter, but he will be said he has not paid. तो मशीन क्या रीड करेगा? His civil score will come down. What is civil? That is the Credit Information Bureau in Limited. और जब हम लोन लेने जाते हैं ना, तो हर बैंक हमारा सिविल स्कोर चेक करता है. That is another dimension of political economics. That when we talk about उसका कर्जा माफ कर दो, उसका कर्जा माफ कर दो, please, you just think of one particular point, that is how his credit history is going to be affected. Yeah, you want to ask a question? Clear? So how this credit score has been affected, that you must keep in mind. जैसे इंडस्ट्री का भी कभी भी जब उसका रिटर्न ऑफ होता है या एनपीए होता है, its CIBIL comes down, then industry will also be in trouble. That is another aspect of the freebie. कि आप किसान का भला नहीं कर रहे होते हो,
अगर आप लोन वेव करते हो, प्लीज प्लीज आप उसको असिस्ट करो, बट वेविंग द लोन इज नॉट अ गुड आइडिया. एंड दैट इज आई एम सेइंग फ्रॉम अ प्योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ, मेरा कोई पॉलिटिकल लिंकेज नहीं है, लाइनेज नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन इकोनॉमिक एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को सुन करके बहुत अच्छा महसूस नहीं करेगा, और खास तौर पे जिसने अपने मैनिफेस्टो में लोन वेवर को इंक्लूड किया है, वो मेरी बात को सुन करके मुझे 4 गालियां ही सुनाएगा. बट आई एम नॉट bothered about that thing. I am just giving you what a student of economics thinks. You agree, you disagree, it's your choice. आप मेरे बात को disagree करते हो, it's a good for me because that is what I feel कि आपने मेरी बात को सुना तो तभी तो आप disagree कर रहे हो. And that is the beauty of democracy कि आप किसी की बात को सुन करके agree या disagree करते हो. Exactly, exactly. It is not just the farmers. I mean, thank you, Professor Saxena, you have raised a very important point. You know, आपने एक लाइन पढ़ी होगी, इंडस्ट्री का 17 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया. आपने पढ़ा होगा, आप में से कई लोगों ने इस बात को सुना भी होगा. यू नो व्हाट इज राइट ऑफ? हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड राइट ऑफ? नहीं, यही चीज मैं, यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा खारिज कर देना. खारिज करने का मतलब आपने क्या कहा? मतलब बेसिकली डिमिनिश करना या अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना. नहीं, मैं अब आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है. व्हेन वी से राइट ऑफ मीन्स यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम द बुक, बट यू आर नॉट गिविंग आउट द राइट टू कलेक्ट द मनी. मैंने आपका अगर लोन राइट ऑफ किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे लोन कलेक्ट नहीं करूंगा. मैंने बुक को क्लीन किया है. बुक को क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बुक को क्लीन नहीं करेंगे तो हम आगे लोन किसी को नहीं दे सकते हैं. क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में एक मेजर है कि जितना भी आप अमाउंट लोन देते हो ना, उतना कैपिटल आपको रखना पड़ता है. सो इफ दैट लोन इज ऑन योर बुक, दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर लोन गिविंग कैपेसिटी. अगर लोन गिविंग कैपेसिटी इंपैक्ट होगा तो किसको नुकसान होगा? सो प्लीज, जब कभी भी आपसे कोई कहे कि राइट ऑफ कर दिया गया है, जस्ट थिंक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट इट इज गोइंग टू हैव. First of all, government is not compensating on the amount of written off on the behalf of industry. On the contrary, many of the time banks have to provide more out of their profit and then the government is in loss because government will not get the dividend. जैसे आपने 100 रुपया राइट ऑफ किया, 100 रुपए का अमाउंट आपने प्रोविजनिंग करी है, तो आपका प्रॉफिट उतना कम हो गया ना. एंड गवर्नमेंट के लिए तो बीइंग अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, दे गेट मनी एज अ डिविडेंड, तो उनका तो लॉस ही हो गया. ऑन द अदर साइड, इफ पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एनपीए, his CIBIL score comes down and that is going to impact his future credit taking approach. तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए. हाँ, एक केस जो आपका अगर मैं बात कहूं, फार्मर्स का लोन वेवर जो कि 2008-2009 में उस समय की गवर्नमेंट ने किया था, उस समय गवर्नमेंट ने वो पैसा बैंकों को प्रोवाइड किया था, बट फॉर द फार्मर्स. और उसका जो फार्मर्स को दिया गया, ऑफ कोर्स बैंक का बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हुआ और गवर्नमेंट को फायदा भी हो गया. गवर्नमेंट को फायदा इस सेंस में हुआ कि बैलेंस शीट उनका स्ट्रेंथन हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, आप डिविडेंड से उतना पैसा ले भी लिए, तो आपने जितना दिया उसका एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड के तौर पे आपके पास वापस आ गया. दैट इज गोइंग टू बेनिफिट दैट. लेकिन राइट ऑफ में ये सिचुएशन सर, इंडस्ट्री के राइट ऑफ में ये सिचुएशन नहीं होता है. एम आई क्लियर सर? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो एक बड़ा डिस्कशन चलता है व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट एसेंशियल. When we talk about the essential, of course, the शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, these are the very essential thing. But when we talk about the non-essentials, like in South India, TV set मिलता है. Like I mean, तमिलनाडु के वोटर से कभी कोई मुझे जलन होती है कि उनको TV सेट मिल जाता है. आप मैम तमिलनाडु से? ओके. नहीं, आपकी स्माइल काफ़ी बढ़ गई थी तो मुझे अच्छा लगा कि आप शायद उस इलाके से हो. बट तमिलनाडु के वोटर, मेरा हेडक्वार्टर तो तमिलनाडु में है, चेन्नई में है.
अब वहाँ ये अलग बात है कि वहाँ जाता हूँ तो मुझे तमिल नहीं आती, तो मैं तो साहब को तमिल ले आया, नहीं आता। लेकिन जब मुझे टीवी लेने की बात हो तो मैं वोटर बनने को तैयार हूँ। मैं भाई टीवी मिलता है वहाँ पे, मिक्सी मिलता है वहाँ पे, साड़ी मिलती है, और साड़ी भी कोई हल्का वाला नहीं, अच्छी साड़ी मिलती है, कांजीवरम मिलती है। कौन कहेगा ना भाई, मुझे भी चाहिए। बट इज इट द एसेंशियल थिंग? सर्टेनली नॉट, एंड द कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय समवन। एंड यू नो, हम लोग हिंदुस्तान में एक बात बार बार कहते हैं, फॉर द डायरेक्ट टैक्सेशन only 1.5 crore people are paying income tax. 1.5 crore, mostly in the middle class. आप हम सभी सैलरीड हैं, हम सभी लोग हर 1 रुपए पे टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स में लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में एवरीवन इज अ टैक्स पेयर। आप भी कोई सामान खरीदते हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, बट यू आर नॉट द एग्जैक्टली टैक्स पेयर, बट बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिटर्न। But when we pay the income tax, it doesn't mean that we are getting some money or something in return. There may be, there may not be. So the big question about freebie is that you have to think about what is essential and what is not essential. So any kind of expenditure on unessential item, non-essential item will hurt the economy. And also we need to remember, आज के दिन में power cost बढ़ गया है, पावर जनरेशन कॉस्ट बढ़ गया। आपको पता है दिल्ली में पानी कितने समय के लिए आता है? 2 घंटे के लिए। नेशनल कैपिटल में हमें 2 घंटे से ज़्यादा का पानी नहीं मिलता, बिकॉज द अवेलेबिलिटी इज नॉट दैट मच, एंड प्रोसेसिंग द वाटर इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉस्टली। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, then it is going to hurt those who are paying the taxes. And at the same time, when we are talking about more and more expenditure on education, health, that is the best thing to do. आप लोगों को इतना एजुकेट करो, आप लोगों को इतना स्किलफुल करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करने की स्थिति में हो, rather than you are not providing that kind of system. This is a very critical part of the freebies and the reveries, how this is going to impact the overall economics. Next slide, please. So another thing which are always in discussion is the new pension scheme versus old pension scheme. Government job का सबसे बड़ा लालच क्या होता रहा है? पेंशन। पेंशन नहीं है तो टेंशन बढ़ रहा है ना? क्योंकि हमारा क्या होगा? But imagine that out of 50 crore labor force, how many of them are the government servant? Any idea? And can you guess that number? It is not even 10%. It is just 3.5 crore out of 50 crore people. तो हमारे देश में जब सोशल सिक्योरिटीज के इशू है, तो जाहिर सी बात है कि पेंशन पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट. सो दैट इज द इशू व्हेन द न्यू पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस. सो पीपल आर सेइंग कि अब आपको पता है कई स्टेट्स में जहां पर सिस्टम चेंज हुआ, लाइक इन राजस्थान, लाइक इन झारखंड, लाइक इन पंजाब, like in Karnataka, like in Himachal Pradesh, the first cabinet decision was restoring the old pension scheme for the government employees. And you will be surprised, Karnataka mein change hua, Karnataka is yet to restore that. They promised, but they have yet to do that because they know that this is going to impact their financial health. Himachal Pradesh ka halat bahut kharab hai because of restoring to the old pension scheme. So you as a journalist, you as a student, you as a youth, you should, whenever you are writing on these things, you must know the pros and cons. हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल सही है. How many of your have parent is from government service? आप में से है ना? आपके लिए बुरा लग रहा होगा ये सुन करके, है ना? मेरे 2004 के बाद में फादर पहले के हैं, जाहिर सी बात है. तो इनके फादर को, इनके पेरेंट्स को हमारी बात बुरी लगेगी. बट रियलिटी इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमिक्स, सो प्लीज थिंक अबाउट द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स. आई मीन पर्सनली आई विल प्रेफर, माई फादर वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्विस, माई मदर इज स्टिल गेटिंग अ पेंशन, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. माई मदर इज गेटिंग, उससे ज्यादा मुझे क्या होगा, माई मदर इज गेटिंग गुड पेंशन, तो मुझे बहुत खुशी है. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हेन आई कैलकुलेट द एंटायर थिंग, आई फाइंड दैट हाउ दिस इज गोइंग टू हर्ट दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग. एंड प्लीज रिमेंबर, इंडिया में लिविंग एज हैज गॉन अप. पहले हम लोग बात करते थे 75-80, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 85+.
So if life is more, then that is also going to add the expenditure. That is why you need to understand on this. Next slide, please. We have the matter is in pending in Supreme Court, and Election Commission is also likely to come out with regulation. But overall, the thing is that this is going to hurt. Freebie is going to hurt the economics. How these are going to hurt, you have to understand that. तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने इकोनॉमिक्स एंड इलेक्शन को जोड़ करके आपको बताने की कोशिश की. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क. लास्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि इसको देखने के बाद बड़ी खुशी होती है कि भाई ने 1 घंटे तक बहुत पकाया है, अब तो खत्म करो. तो दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, सर एक थ्योरी है जिसकी ये कहते हैं कि अगर बीजेपी इस बार गिर जाएगी तो शेयर मार्केट इंडिया का बहुत डाउन जाएगा. तो एज अ इकोनॉमिस्ट आप इसको कैसे बताएंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हर प्लेटफॉर्म से मुझे मांगा गया है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टी, ए बी सी डी, जो भी हो. व्हाट द स्टॉक मार्केट नीड, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टॉक मार्केट? कंटिन्यूटी and stability. Any government which is in a position to give continuity and the stability in policy, the stock market will not be affected. So चाहे वो आ रही हो, चाहे दूसरे आ रहे हो, चाहे कोई तीसरा आ रहा हो, since the market has seen what happened in 2004 when there was a change. So that is why this kind of theory is being given, that if another party comes, then the market will be affected. To cut short the reply, the simple reply is that market needs stability in policy and the continuity in the governance. If it gets that, it will grow. If it is not, it will come down. इसको मैं पॉलिटिकल पार्ट से पूछता हूँ. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बाबा रामदेव ने शुरू किया था 2014 में कि होना चाहिए. मेरा दोनों पक्ष से जानता हूँ, क्योंकि आप चुनाव भी कवर करते हैं और फाइनेंस भी देखते हैं. फाइनेंस ही कवर करता हूं मैं, चुनाव तो मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है. ये भी ठीक है. कितना फर्क पड़ता है अगर हम डायरेक्ट टैक्स को हटा दें? मेरा पहला क्वेश्चन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो हम ले ही रहे हैं. दूसरा, 2014 के करीब एक हवा सी उड़ी थी कि 5 करोड़ जिनकी सालाना इनकम है किसानों की, उन पर टैक्स लगाया जाएगा. सिर्फ अफवाह उड़ाई गई थी कि ये होता है, पॉलिटिकल में होता है कि आप थोड़ा सा उड़ाइए, फिर पता लगे कि माहौल क्या है, फिर बात को दबा दीजिए. तो इसका बड़ा विरोध हुआ. 5 करोड़ सालाना यानी कि बहुत अच्छी इनकम है, उसके बावजूद भी. तो इसमें कई लोग हैं जिसमें उन दायरों से बाहर हैं, मिडिल क्लास ही टैक्स देता है. तो पहला क्वेश्चन है, क्या हम डायरेक्ट टैक्स हटा दें? अगर डायरेक्ट टैक्स हटा दें या डायरेक्ट टैक्स का दायरा बढ़ा दें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ओके. पहला जो आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स को हटाने का, देखिए हमारे देश में जब हम लोग कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आय का बटा हुआ है. आज आप इनकम टैक्स की बदौलत उन सब पे एक नज़र है कि किसकी कितनी इनकम है. जैसे आपका स्लैब है 0.0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10, फिर 10 प्लस, और प्लस 50 लाख के ऊपर वाले में सरचार्ज है ना. नाउ इफ यू रिमूव दिस डायरेक्ट टैक्स, आप हटा दो, दैट मीन्स द पीपुल हैविंग हायर इनकम विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम. ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे होंगे. ऐसी सूरत में क्या आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बढ़ेगी? मार्केट में वो लोग ज्यादा खरीदारी करते हुए नजर आएंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है, और जिनकी आय कम है वो बाजार से दूर होते जाएंगे. तो क्या आप वो चाहते हैं कि बाजार में एक ऐसी व्यवस्था हो कि 5 ही खरीदार हो, 50 खरीदार ना हो? आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? बताइए. सहमत हैं? इस बेसिस पे इनकम टैक्स को हटाया जाना आपको कोई लॉजिकली इनइक्वालिटी को खत्म करने का रास्ता नहीं खोल रहा है. मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि आप अगर हायर इनकम टैक्स का रेट कर दें, am I right? यही आप कहना चाहिए. दायरा में दोनों चीजें आ जाती हैं. बिल्कुल, दायरा में एक बात आ जाता है कि आप स्लैब को नीचे कर दीजिए,
जैसे 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 एंड 10 से अबव, ये स्लैब है। इस स्लैब को अगर हम चेंज कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर दें, उसके लिए आपके पास रास्ता क्या है? टैक्स के रेट को आप कम कर दें। ये ज़्यादा बेटर है और दुनिया भर में प्रैक्टिस ने ये बताया है कि अगर आप टैक्स का रेट कम करते हैं तो आपका कलेक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में आपके रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप मक्खन खरीदने जाते हैं तो चाहे मुकेश अंबानी खरीद रहे हो या शिशिर सिन्हा खरीद रहे हो, दोनों को 12% ही जीएसटी देना है, उसमें कोई फर्क नहीं करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को इसीलिए रिग्रेसिव टैक्सेशन भी कहा जाता है और डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, क्योंकि हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो ऐसे में अगर टैक्स के रेट को कम कर दिया जाए, दुनिया भर का अनुभव यह बताता है कि आपका दायरा बढ़ जाएगा। तो हम इस बात की पुरजोर वकालत करते रहे कि आपको स्लैब में चेंज करना है और ये जो 0.25 और 2.5 से 5 वाला है, इस स्लैब को भी आपको चेंज करना है, रेट को कम करना है। तो आज जो हम 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं 142 करोड़ की आबादी में, वो संख्या आपका 10 करोड़ 15 करोड़ आसानी से पहुंच सकता है। तो इस बात के लिए जरूरी है स्लैब और रेट दोनों में चेंज किया जाए। तीसरा पॉइंट जो आपने कृषि के लिए पूछा था, एग्रीकल्चर के लिए, देखिए हमारा एक अजीब सा एक पैराडॉक्स देखिए, एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट में है। अगर आप 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें से एक आपका यूनियन लिस्ट है, एक आपका स्टेट लिस्ट है और एक आपका कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है। तो जब कभी भी एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने की बात आती है तो सेंटर में भले ही अपोज ना हो, सबसे पहले तो अपोज कौन करता है? स्टेट्स करता है। और कौन स्टेट अपोज करता है? जहां पर सबसे ज्यादा किसान समृद्ध हैं, पंजाब, हरियाणा, ये सबसे ज्यादा अपोज करते हैं, जबकि वो कमा भी रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें गलत नहीं है अगर एक सर्टेन इनकम के ऊपर अगर आप कहते हो कि जैसे आपने 50 लाख के ऊपर अर्न किया थ्रू एग्रीकल्चर, प्लीज पे द टैक्स ऑफ से 5%, कंसेशनल आप रेट दो। उसको लाने का आपका ये भी फायदा होगा, जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो आपका दायरा बढ़ाना है, ये भी एक तरीका है। क्योंकि देश में मत भूलिए 15 करोड़ किसान हैं और 15 करोड़ किसान में 86% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जबकि 14% जो है वो लार्ज फार्मर्स हैं। तो 14% में अगर आप सोचिए कि 10% भी नहीं आते हैं, 4% आते हैं, इमेजिन द नंबर्स, आपका टैक्स कितना बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। बट वही कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा समझ तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको है, तो हम जितनी बातें कर ले, लेकिन उनके अंदर जब ये समझ नहीं आएगी तब तक शायद होगा नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? सो जैसे मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा नाम मोहित है, मैं BGMC। सो जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, उस टाइम पे हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो हम स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, कभी डाउन जा रही है कभी अप जा रही है, और कंसेक्यूटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज के दिन में, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। आज के दिन में हम सभी लोग, जिसको कहते हैं ना, हम लोग वैश्विक गांव में रहते हैं। वैश्विक गांव का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल विलेज। तो हम लोग कभी भी ग्लोबल टाउन नहीं कहते, हम लोग कभी ग्लोबल सिटी नहीं कहते, हम लोग हमेशा ग्लोबल विलेज कहते हैं। गांव की एक अजीब सी आप एक परंपरा देखेंगे, अजीब नहीं कहना चाहिए, एक सुखद चीज है। आप गांव से आते हो, रूरल एरिया से आते हो? पंजाब, चलो पंजाब तो अच्छा ही है। आप भी, आपके आगे भी पंजाब से बैठे हैं, उनको देखिए, उनका हिस्ट्री देख करके लग रहा है। तो पंजाब में अगर हम क्या पिंड कहते हैं ना, एक पिंड में, एक घर में कुछ भी छोटी सी बात होती है तो उस पिंड के सारे घर उसके सुख दुख में शामिल होते हैं। Am I right or wrong? गांव देहात में ये कहानी सबसे कॉमन है, दिखने को मिलता है। शहरों में आप नहीं देखोगे। शहरों में मोहल्ला का मोहल्ला, एक मोहल्ले में 100 परिवार रहता है, किसी एक परिवार में हो भी गया, बाकी 99 परिवार वाले कहते हैं ठीक है यार, हो गया, क्या कर सकते हैं। बट इन गांव, इन पिंड ऐसा नहीं होता है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता है। When we talk about the global village, coming to the larger picture, ग्लोबल विलेज में एक पर्टिकुलर देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, लाइक हैपन विद द इजराइल एंड हमास। हमास इज नॉट अ देश, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इजराइल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लड़ाई होती है, फिर इधर आपका रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है, फिर आपको रेड सी क्राइसिस हो जाता है, फिर आपका ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है।
ये सारे क्राइसिस की वजह से जो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है दैट इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड, एंड व्हेन देयर आर अनसर्टेनिटी द मार्केट विल बी इंपैक्टेड, स्टॉक मार्केट विल बी इंपैक्टेड एंड द गोल्ड प्राइसेस विल गो अप. आज के दिन में आपको पता है ना, गोल्ड इज एट द हाईएस्ट लेवल. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी. स्टॉक मार्केट्स आर इन अ volatile situation because of the global uncertainty. So market does not believe in uncertainty, but gold always looks for uncertainty. जब कभी भी ऐसा कुछ होगा ना, सोने की बाँछें खिल जाती है. You know बाँछें ना? थोड़ा गिरा सर. अब देखिए, उनको पारुल को कुछ खरीदने का मौका तो दीजिएगा. तो अगर सोना गिरा कल, वो थोड़ा सा गिरा, अब 72,000 पर 10 ग्राम्स पे आया है, अब अचानक 70,000 या 71,000 पे आता है. इट्स नॉट अ बिग फॉल. मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की थी 1995 में, यू विल बी सरप्राइज, उस समय सोने का भाव था 2450 रुपया पर 10 ग्राम, 2410 रुपीज पर 10 ग्राम. टुडे इट इज 72,000 रुपीज पर 10 ग्राम. मेरा अपना एक्सपीरियंस 28 साल का है. अगर मैं CAGR निकालूं तो आप देखिए कहाँ पहुंचता है. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग तो यही चीज सोचते हैं ना कि CAGR क्या है. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मार्केट डज नॉट बिलीव इन अनसर्टेनिटी. Uncertainty in any part of the world will impact the stock market in any part of the world, and especially during in the emerging economies like India, and that is why we have seen this situation. Number one. Number two, Federal Reserve अभी बहुत clear decision नहीं ले पा रहा है whether they have to cut down the interest or whether they have to maintain that, because inflation control में नहीं आया है, and that is also impacting the stock market. So these are the two key reasons why the stock market are seeing too much volatility. एक अरे बाजी ने क्वेश्चन पूछा है. हाँ जी. हेलो सर, मेरा नाम जनमीत है. हेलो सर, मेरा नाम जनमीत है, मैं दिल्ली से ही हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि कोई बात नहीं भाई, दिल्ली से हो. दिल्ली, हाँ. तो मेरा क्वेश्चन है कि जो GST है वो 1 नेशन 1 रेट ही है, लाइक है ना. तो यहाँ पर नोएडा में कुरकुरे का एक पैकेट 25 का मिल रहा है, और अगर दिल्ली में तो वो 20 का मिल रहा है. ऐसा क्यों? पहली चीज, प्लीज हैव अ सीट. पहली चीज, GST में कभी भी नहीं कहा गया था 1 नेशन 1 रेट. हाँ, तो अब जो भी है, GST में क्या कहा गया था? 1 नेशन 1 मार्केट, और उसी के साथ लोगों ने जोड़ दिया 1 रेट. नाउ इमेजिन कि एक मर्सिडीज कार और हवाई चप्पल, क्या दोनों का रेट एक हो सकता है? इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए हमारे पास 5 रेट आ गए. तो आप हवाई चप्पल खरीदोगे या मर्सिडीज खरीदोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये सोच करके कि GST दोनों पे बराबर है तो चलो मर्सिडीज ले लेते हैं, ये तो हो नहीं सकता है ना, बिकॉज यू डोंट हैव द इनकम. आई एम सॉरी, तुम्हारे पास होगा, आई एम सॉरी, तुम्हारे पास हो सकता है. बट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि GST में कभी भी नहीं था कि 1 नेशन 1 रेट. GST वाज 1 नेशन 1 मार्केट. सो व्हेन वी से 1 नेशन 1 मार्केट मींस कि कुरकुरे पर जो रेट दिल्ली में है, रेट याद रखना, GST के रेट की बात कर रहे हैं, उसका MRP की बात नहीं कर रहे हैं. जो GST का रेट दिल्ली में कुरकुरे पे होगा, वही रेट नोएडा में भी होगा, वही रेट गुरुग्राम में भी होगा, वही रेट फरीदाबाद में भी होगा, वही रेट मेरठ पे भी होगा. बट the prices will differ because the transportation of kurkure from the factory to Noida will be different, factory to Delhi will be different, तो उसका MRP आपका चेंज होगा. It is not because of the GST. Yeah, please. Sir, I'm Hardik Sharma from 4th semester. My question is कि जब GST लाई थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक बहुत ही मेजर चीज़ बोली थी, दैट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल द टैक्स रिजाइम्स, और हम थोड़ा सा सिंपल ऑल द टैक्स रिजाइम्स, सो दैट कि चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाएं. बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखा है कि एवरी ईयर जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ टैक्स स्लैब में चेंज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो जाता है जिससे शायद मिडिल क्लास को वो समझने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. तो ये क्या सिंपल कर पाया जो उनका एम था, या फिर ये अभी भी कॉम्प्लिकेट ही कर रहा है लोगों को? हार्दिक, ओके. First of all, GST is not part of the union budget. GST is part of the GST council. तो अब जब कभी भी GST का कोई चेंज होना होता है, इट इज नॉट द यूनियन बजट बट द GST काउंसिल टेक्स अ कॉल कि किस पे रेट को कम करना है, किस पे रेट को ज़्यादा करना है. What is the role of the budget? Budget has to decide about the income tax, which is the direct taxes.
वहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं वो बजट में होता है. तो देयर द issue of what you call it as the simplicity in the direct taxes, maybe in some areas of direct taxes the simplicity is missing. But in terms of the GST, there are another kind of complexities. Complexity क्या है कि किसी, आप जैसे एक सिंपल सा आपको मैं बात बताता हूँ. आप कहाँ रहते हो पहले ये बताओ. सर दिल्ली, ईस्ट दिल्ली. ईस्ट दिल्ली में कहाँ पे? कृष्णा नगर. कृष्णा नगर में. आप अपने घर में आटा लाते हो. आटा लाने के आपके पास दो सोर्स हैं. एक जो कि एक फ्लोर मिल है जो आपके एक मोहल्ले में होगा, और एक है कि आप किसी मॉल में जाकर के आशीर्वाद का आटा ले लेते हो या फिर आप कोई एक ब्रांडेड ले लेते हो. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर बाइंग ब्रांडेड और अनब्रांडेड बट पैकेज्ड आटा, you have to pay 5% GST. If you are buying unbranded, unpackaged आटा, you don't have to pay GST. अब ये कॉम्प्लेक्सिटी है. उसी तरीके से मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान पे आपने देखा होगा कि जैसे अग्रवाल है दिल्ली में, तो पता नहीं कितने अग्रवाल हैं, मुझे मालूम नहीं है. अग्रवाल हो, बीकानेर वाला हो, हल्दीराम हो, इन सभी दुकानों पे दो तरह की मिठाइयाँ बिकती हैं. एक पूरा का पूरा पैक्ड होता है और एक आपका खुले में बिकता है. But if you are entering into Haldiram shop, that is the 5% GST you have to pay. But if you are entering into a say shop in your locality, Krishna Nagar, कोई हलवाई है वहाँ पे जो दुकान जिसने खोला है, there you don't have to pay GST. लेकिन वही दुकानदार अगर उसका annual turnover more than 40 lakh rupees है, and if he is selling packaged one, पैक करके पूरा सजा करके बेच रहा है, then he has to pay 5% GST on that. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जीएसटी में है. आज के दिन में हम सभी लोग इस चीज को चर्चा करते हैं कि पहली बात कि मल्टी रेट रिजीम इज नॉट अ गुड वन. देयर शुड बी फ्यूअर रेट्स. आज हमारे पास रेट क्या है? 5, 12, 18, 28. उसके अलावा हमारे पास 0.25, 1%, 1.5% एंड 3%. 8 रेट है. जस्ट मिनट, 8 रेट है. इस 8 रेट की वजह से एज अ कंज्यूमर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि हम क्या लें क्या ना लें. जैसे आप देखो, आप सभी लोग एक चीज बहुत कंज्यूम करते हो. सबसे ज्यादा आप कंज्यूम क्या करते हो? आलू. फिर वापस आलू पे आ गया. आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हो. कोई बात नहीं, चलो आपके झूठ को हमने सच मान लिया. बट कोल्ड ड्रिंक में, बेवरेज में द जीएसटी रेट इज 28%. आप कोक पीते हो, 28% जीएसटी है. अब वहीं पे जलजीरा, जैन सिकंजी वालों का जलजीरा पियो, 1 पैसा जीएसटी नहीं. तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, हमको इसके बारे में सोचना है. एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजीम विच इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन बजट. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट पोस्ट इलेक्शन these things will be taken care of and there will be lesser, or the simplified taxation regime, lesser complicated and simplified. Exactly, we are expecting that, and within a year or so we hope कि हमारा जो GST होगा वो और simpler होगा. Hopefully some decisions will be taken after this election on GST. That is what we are expecting. Thank you so much, Shishir sir. Thank you so much for such an interesting and insightful session. Moving towards the end of the session, I would like to invite Shubham Mishra, Assistant Professor of DME Media School, to deliver vote of thanks on behalf of the school. थैंक यू मैम. डीएमई मीडिया स्कूल के अथक प्रयासों से वीजी वर्गीस लेक्चर सीरीज़ के इस मंच पर दशकों के अपने अनुभव के साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा सर, डीन डीएमई मीडिया स्कूल प्रोफेसर डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना सर, हेड ऑफ डीएमई मीडिया स्कूल डॉक्टर पारुल मेहरा मैम, इन सभी के अनुभवों के मौजूद होने से ही ये जो मंच है ये खुद में ही एक अभिनंदन और धन्यवाद जैसे भावों से भरा हुआ मंच बन जाता है. देश का माहौल हम सभी को पता है कि इस समय जो हमारे देश का माहौल है वो चुनाव का माहौल है, और ऐसे में वीजी वर्गीस का टॉपिक इलेक्शन एंड इंडियन इकोनॉमी एंड बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस का होना, इस बात पर, और सर ने जिस तरीके से हम सभी को एक एक पॉइंट पर, यानी कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स और उससे जुड़ा जो भी पेज, जिस तरीके से हम लोग जब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये जो इकोनॉमी वाला जो पेज होता है ये सबसे ज़्यादा हम सभी को चुभता है.
हम लोग इस पेज को देखते ही या तो पलट देते हैं या फिर किसी और पेज की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से सर ने उन आंकड़ों को समझाया, और ख़ास करके उन आंकड़ों से कि आप सभी को तो ये पता ही है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, और त्यौहार के बाद, पार्टी के बाद बाकायदा पार्टी का बजट किया जाता है, उस पर चर्चा होती है। लेकिन जिस तरीके से हम सभी ने ये देखा कि जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, जो एक लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उसका बजट, उसकी जो चर्चा होती है, उसके जो आंकड़े आते हैं, उन सभी को देखकर जो हम भागे भागे फिरते थे, उनको देखकर हम अपनी जो गाड़ी है कहीं दूर से ही मोड़ लिया करते थे। लेकिन जिस तरीके से सर ने इस सीरीज़ के माध्यम से हमको उसके बारे में समझाया, उन चीज़ों के बारे में हमें जिस तरीके से बड़े ही सरलता के साथ बताया, मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से हम सभी को कुछ ना कुछ जरूर ही ज्ञानोदय हुआ होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हम सभी के लिए इस वीजी वर्गीस सीरीज़ में अपना समय निकालने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ और आपको बेस्ट विशेस करता हूँ कि आपकी जो पूर्वांचल की जो यात्रा है वो मंगलमय हो, शुभ हो। और इसी के साथ सभी डीएमई मीडिया स्कूल की सभी फैकल्टीज़ और प्रोडक्शन टीम के सभी मेंबर्स और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस सीरीज़ के एक और एडिशन को आज फिर से एक बार सक्सेसफुल कर दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि मैं और हमारी टीम डीएमई मीडिया स्कूल की हर बार और एक बार फिर आने वाले समय में ऐसे ही व्यक्तित्व और उनके अनुभवों से भरे विचारों को लेकर हम जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।